ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਐਂਡ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜ ਹੋਣ, 4 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਹੋਣ ਚਾਹੇ 5 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਹੋਣ, ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, that arrangement is known as Wheatstone bridge। ਐਂਡ ਅਗਰ ਆ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪੁੱਤ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ P/Q ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ R/S ਹੈ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਨਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਕੋਈ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ D ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, P/Q ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ R/S। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਬਟ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਬ੍ਰਿਜ ਇਜ਼ ਬੈਲੈਂਸਡ। ਵੈਨ bridge is balanced, then galvanometer and battery can interchange its position। ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ। ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸਲਾਈਡ ਵਾਇਰ ਬ੍ਰਿਜ। ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਸਲਾਈਡ ਵਾਇਰ ਬ੍ਰਿਜ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੂਗਾ ਕੋਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ? ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਇਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇਹ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ 1 ਮੀਟਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਨਫਰਮਡ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਸਲਾਈਡ ਵਾਇਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ, 100 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 100 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਅਗਰ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਂਥ ਹੈ 1 ਮੀਟਰ ਹੋਏਗੀ, A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ, ਫਰੋਮ A ਟੂ C ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇਹ 1 ਮੀਟਰ ਹੋਏਗੀ, 1 ਮੀਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਬਟ ਅਗਰ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਵਾਇਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਲਾਈਡ ਵਾਇਰ ਬ੍ਰਿਜ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆ ਲੈਂਥ 100 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 100 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 100 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਵਾਲੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਲੈਫਟ ਗੈਪ ਹੈ, ਆ ਲੈਫਟ ਗੈਪ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਫਟ ਗੈਪ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਗੈਪ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ ਗੈਪ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੈਫਟ ਗੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰ ਦੱਸੇਗਾ ਪੁੱਤ, ਜੋ ਰਾਈਟ ਗੈਪ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਲੈਂਥ ਆਏਗੀ, ਐਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਲੈਂਥ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀ ਦੱਸੇਗੀ। ਤੇ ਕਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲ ਮੀਟਰਸ 'ਚ ਹੈ, ਮੀਟਰਸ 'ਚ, ਫਿਰ 1 ਮਾਈਨਸ ਐਲ ਕਰ ਦੋਗੇ, 1 ਮਾਈਨਸ ਐਲ। ਜੇ ਐਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ 'ਚ ਹੈ ਫਿਰ 100 ਮਾਈਨਸ ਐਲ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਐਲ ਮੀਟਰਸ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊ ਕੱਢੋਗੇ 1 ਮਾਈਨਸ ਐਲ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਐਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ 'ਚ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊ ਕੱਢੋਗੇ 100 ਮਾਈਨਸ ਐਲ ਕਰਕੇ। ਲੈਫਟ ਗੈਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਆਰ, ਲੈਫਟ ਗੈਪ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਪੁੱਤ? ਆਰ। ਰਾਈਟ ਗੈਪ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਐਸ।
एंड बैलेंसिंग लेंथ तो थोड़ा पता चलेगा P एंड इधरों माइनस करके थोड़े को आ गया Q, फिर असी लगा देंगे P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करांगे। लेंथी क्वेश्चन तो हैगे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ पर ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब उन्ने टफ नहीं है जिन्ने ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਰਚੌਫਸ फर्स्ट लॉ एंड सैकेंड लॉ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ठीक है, so now we are going to start numericals, okay? Type B, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दी स्टेटमेंट देखो बेटा, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। इन अ मीटर ब्रिज, देखो मीटर ब्रिज दिता होया है, क्लीयर है भी जी लेंथ है 1 मीटर होएगी ब्रिज की। बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए तो 30 सेंटीमीटर ते बैलेंस पॉइंट। वैन रेजिस्टेंस आर इन द लेफ्ट गैप of the bridge is 12 ohm, find the resistance S in the right gap of the bridge। right gap ਦੇ ਵਿੱਚ bridge find ਕਰਨੀ, okay? right gap ਦੀ resistance find out ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਓਨਲੀ ਫਸਟ ਪਾਰਟ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਹੀ ਇਸੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰੀਏ। मीटर ब्रिज दिता है, दैट मीनस जी लेंथ है ये 1 मीटर है, 1 मीटर लैनी है 1 मीटर ले लो, 100 सेंटीमीटर लैनी है 100 सेंटीमीटर ले लो, क्लीयर। उन्होंने क्या है बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 30 सेंटीमीटर, जोड़ा बैलेंस पॉइंट है एंड ए तो 30 सेंटीमीटर ते है, मतलब एल दिता हुआ पुत थोनू, एल बैलेंसिंग लेंथ 30 सेंटीमीटर ते दी हुई है। बैलेंसिंग लेंथ किसका रोल प्ले कर दी पुत, बोलो। बैलेंसिंग लेंथ रोल प्ले कर दी है P का। इत्थों नाल दी नाल Q कढ़ लो पुत, ये सेंटीमीटर्स च आ यूज कर लो, 100 माइनस L, 100 माइनस 30, 70 सेंटीमीटर। उस तो बाद देखो उन्होंने की कहा है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन च उन्होंने कहा है जिहड़ी रजिस्टेंस लैफ्ट गैप च है, लैफ्ट गैप आ सीगा, लैफ्ट गैप च 12 ओम की रजिस्टेंस है, 12 ओम मतलब R, लैफ्ट गैप की रजिस्टेंस R का रोल प्ले करती होंगी है। राइट गैप की रजिस्टेंस कढ़नी है तुसी, राइट गैप की रजिस्टेंस कढ़नी है ना। तो यस बेटा, रजिस्टेंस फाइंड आउट करने वास्ते आप की यूज करांगे बेटा, P अपॉन Q R बाय S, P की वैल्यू 30, Q की वैल्यू 70, R 12, S कढ़ लो, 12 इंटू 7/3, 3 इंटू 4, 4 7 4 28, S आ जाएगा 28 ओम। ये थोड़ा फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट च देखो की क्या उन्होंने, यस बेटा। इफ सेल एंड गलवेनोमीटर आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट वुड इट अफेक्ट द फ्लो ऑफ करंट टू द गलवेनोमीटर। कहते जे बैलेंस पॉइंट ते कहते गलवेनोमीटर ते सैल नू इंटरचेंज कर दिए कि करंट दे फ्लो नू कोई फर्क पेगा। बेटा जदों ब्रिज बैलेंस है, वैन ब्रिज इज बैलेंस, मैं थोनू दस के हटिया, वैन ब्रिज इज बैलेंस गलवेनोमीटर ते बैटरी इंटरचेंज करने नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, नो इफैक्ट। तो तुसी आंसर लिखोगे बिकॉज ब्रिज इज बैलेंस, तो तुसी गलवेनोमीटर ते बैटरी नू इंटरचेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पैंदा सर्किट नू, नो इफेक्ट इन द फ्लो ऑफ करंट when bridge is balanced, then on interchanging the position of cell and galvanometer does not affect flow of current, flow of current effect नहीं होता।
हाँ जी बेटा बोलो। हाँ भाभी। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਬਦਲੋਗੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਲੋ ਬਦਲੇਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਇਰਸ 'ਚ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਓਕੇ। हाँ बेटा, सेकंड पार्ट ओवर हो चुका है। थर्ड पार्ट देखो उन्होंने की पूछा है। थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज इफ आर एंड एस आर इंटरचेंज्ड। ओके, थर्ड पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਉਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਉਰੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤ, ਆ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਥਰਡ ਪਾਰਟ। ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਐਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਕਿਊ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੁੱਤ? 100 ਮਾਈਨਸ ਐਲ। आर एंड एस इंटरचेंज करना है, पी डैश या P1 लिख लो, P1 Q1 R1 S1। बैलेंसिंग लेंथ तो कढ़नी है, Q हो जाएगा 100 माइनस एल। आर तुसी लेना है जो एस आया है, एस कितना है पुत? 28, वो आर लेना है। तो जो आर सीगा वो एस लेना है, आ लेना है। आ चीज़ां बन गई, इत्थे तुसी लगा दियो P1 बाय Q1 इज इक्वल टू R1 बाय S1। P1 की वैल्यू L, Q1 की वैल्यू 100 माइनस एल, R1 की वैल्यू 28, ये हैगा 12, कटिंग करके 4 7 28 4 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3L 700 माइनस 7L, 7L उधर आके 10L हो जाएगा, 700 L आ जाएगा पुत्र 70 सेंटीमीटर इज द आंसर। समझ आ गया किमें करना है? हाँ ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन है बेटा ये। 19th क्वेश्चन चो किसी ने कुछ पूछना है बेटा? नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 20th। 20th की स्टेटमेंट देख लो बेटा एक बार, वाली डायग्राम है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी पॉइंट के बिटवीन नैट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी डी ई, रेजिस्टेंसिस आर दिते हुए ने अपन, ए बी आर, ए बी आर, ए बी आर, ए बी आर। यू हैव टू फाइंड नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी च नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बेटा। ये टोटल काउंट करियो कितनी रेजिस्टेंसिस है, 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंसिस है। ये ब्रिज बनाने की कोशिश करो, यदि ब्रिज बनाने की कोशिश करो यदि बेटा। ए पॉइंट एंड बी पॉइंट बाहर रख लो, न्यू डायग्राम ड्रॉ कर दें आप। ए पॉइंट एंड बी पॉइंट बाहर रख लो, ए बी सी डी ई, ई पॉइंट भी है बेटा, सी डी, वैसे तो ए बी सी डी। चलो चेक कर दें बेटा, डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर दें। ओके, अब वाली रेजिस्टेंस देखियो बेटा केड़े केड़े पॉइंट च लगी हुई है। सी एंड डी च लगाती। ओके, यस कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी थोड़ी। आ चेक करियो बी पॉइंट एंड ई पॉइंट कुछ लग्या है पुत?
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੀ ਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇਮ ਦੇ ਦਈਏ ਪੁੱਤ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ A B C D, ਉਹ ਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈंने ਖਤਮ ਕਰਤਾ। C ਐਂਡ D ਚ ਇੱਕ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪੁੱਤ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਚ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਪੁੱਤ, B ਐਂਡ D ਚ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕੀ ਦਓਗੇ ਬੋਲੋ। A ਐਂਡ D ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ? ਆਰ। ਆਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਬਿਟਵੀਨ A ਐਂਡ C। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਣ ਗਿਆ ਬ੍ਰਿਜ ਬੇਟਾ, ਬੋਲੋ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਬੈਲੈਂਸ P अपॉन Q भी बन आ रहे, R बाय S भी बन आ रहे, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाय S। देयरफॉर ब्रिज इज बैलेंस। जे ब्रिज बैलेंस है तो बेटा सेंट्रली वायर चो कोई करंट फ्लो नहीं होएगा, कोई करंट फ्लो नहीं होएगा तो इनू हटा दो। जो तुसी सेंट्रली वायर हटा दोगे बेटा तो देखो उपरलियां दोने वायर्स एवें बन जाएगी थोड़ी न्यू डायग्राम। A P उपर वालियां दोने R दैन R एक पाथ च आ जानियां, नीचे वालियां दोने R एंड R एक पाथ च आ जानियां। आ दोने बेटा एक पाथ च आ गई, दोने किस च हो गई सीरीज च। नैट रेजिस्टेंस इन्हां दी बनी 2R। नीचे वालियां दोने एक पाथ च ने, ये भी सीरीज च 2R। नाउ ये दोने किस च पुत्त? पैरेलल च। विजिबल और नॉट विजिबल? पैरेलल च है। हाँ पैरेलल च है तो पैरेलल का फार्मूला लगाओ, 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R। कितना आ जाएगा आंसर बेटा नेट? क्वेश्चन किवें किया समझ आ गया? बोलो। क्वेश्चन का बी पार्ट देखो की है हुण। बी पार्ट, आल्सो कैलकुलेट द करंट थ्रू ACB if 10 volt DC source is connected between A and B, value of R assumed to be 2 ohm। R की वैल्यू 2 ohm ले लो। ACB चो करंट दसना है, अगर A एंड B के बिटवीन आप 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो पुत्र ACB तो आ वाला उपरला पाथ हो गया, वाला आ ADB पाथ है। तो आप मैं डायग्राम इत्थे ड्रॉ कर रहे हैं, देखियो पुत्र A B C D, ये बैटरी लगाती 10 वोल्ट। बेटा दिस इज द डायग्राम। आही उपरली डायग्राम ही बनाई है पुत्र, अलग डायग्राम नहीं बनाई मैंने, आही डायग्राम बनाई है। देखो आ दो रेजिस्टेंसेस आ हो गई, आ लगाती हैं, दो रेजिस्टेंसेस आ हो गई, आ वाली आ लगाती। 10 वोल्ट की बैटरी है। अच्छा दसो पुत्र जो ए दोने ते आ दोने आपस च किस च ने? पैरेलल च वोल्टेज की हुंदी है? सेम। किन्नी हुंदी है बेटा? जिन्नी बैटरी दी है। तो इन्हां दोनों के अक्रॉस वोल्टेज किन्नी हुई पुत्र? 10 वोल्ट। इन्हां दोनों के अक्रॉस वोल्टेज किन्नी हुई? 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस किन्नी हुई पुत्र? रेजिस्टेंस 2R। करंट कढ़ सकते हो ACB पाथ दा? ओम्स ला लगा के I इज इक्वल टू V बाय R।
V ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਵੋਲਟ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 2R, R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ 2 ohm, 10 by 4, 2.5 ampere is the current through ACB path. ACB path ਦਾ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ? ਬੇਟਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? Okay. Now we move to question number 21. क्वेश्चन नंबर 21 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ। P, Q, R and S are four resistances, wires of resistances 3, 3, 3 and 4 ohm respectively. They are connected to form four arms of Wheatstone bridge. Find out the resistance with which S must be shunted in order that bridge may be balanced. Shunt ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਰਲਰ ਚ ਲਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ। Shunted means parallel. Shunt word यूनिट थर्ड च आएगा। यूनिट थर्ड च ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਰਲਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਲਰ ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਆ ਪੁੱਤ। P, Q, R and S ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਵਨ ਨੇ। P ਵੀ 3 ohm, Q ਵੀ 3 ohm, R ਵੀ 3 ohm, S ਹੈਗੀ ਹੈ 4 ohm। ਕਹਿੰਦੇ S ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਸ਼ੰਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ let S resistance is shunted ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਲਰ with X। ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਇਹਦੀ ਨੈਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ ਦੱਸਿਓ। ਇਹਦੀ ਨੈਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹਾਂ ਨੈਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣੇਗੀ S into X upon S plus X। S ਹੈਗਾ 4, ਇੰਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਬਿਕੋਜ਼ bridge is balanced with RP ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ P upon Q is equal to R by S ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨੈਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣੇਗੀ RP, ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ S ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨਾ P upon Q is equal to R by S। P ਆ ਸੀ ਪੁੱਤ, Q ਆ ਸੀ, R ਆ ਸੀ, S ਆਏਗੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨੈਟ ਨੈਟ RP, ਇਹ ਆਏਗਾ S ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ RP। ਤਾਂ P ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਤ 3, Q ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3, R ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3, RP ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 4x upon 4 plus x। 4 plus x ऊपर चला जाएगा, 3 ਨਾਲ 3 ਕੱਟਾ ਜਾਏਗਾ, 1 is equal to 3 into 4 plus x upon 4x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x is equal to 12 plus 3x, 4x minus 3x is equal to 12, x is equal to 12। that means when S is shunted by 12 ohm resistance then bridge is balanced। फिर ਜਿਹੜਾ bridge ਆ ਉਹ balance ਹੋਏਗਾ। क्वेश्चन करना आ गया किमें करना पुत? बेटा समझ आ गया क्वेश्चन कि नहीं आया? हाँ
ਆ P ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗੀ, ਆ Q ਦਾ, ਆ R ਦਾ, ਤੇ ਆ ਜੋ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ that plays the role of S, S ਦਾ ਰੋਲ RP ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ, RP, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਫਾਰਮੂਲਾ लगाओ, वैल्यूज पुट करो, आंसर। ठीक है, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ਤੇ ਆਨੇ ਪੁੱਤ। क्वेश्चन नंबर 22 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ। ਇਹ डायग्राम ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। बैलेंसिंग लेंथ 40 है, ये 60 है। आ राइट गैप हो गया, आ लेफ्ट गैप हो गया। ओके, in the circuit shown in figure a meter bridge as shown in its balanced state, जेड़ा मीटर ब्रिज है वो बैलेंस है। मीटर ब्रिज वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस 1 ओम है पुत्त। ਇਹਦਾ मतलब यह है भी 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस 1 ओम है। 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस 1 ओम है तो 40 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस 40 ओम होएगी, एंड 60 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस 60 ओम होएगी। चलो इस तो अपन ने कुछ लेना देना नहीं। कैलकुलेट रेजिस्टेंस एक्स, एक्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। ईजी क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, लैफ्ट गैप च की लग्या होया पुत्त दसो मैनू, डायग्राम देख के लैफ्ट गैप च की लग्या होया, राइट गैप ते की लग्या होया, बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 100 माइनस एल कितनी है। शाबाश, फटाफट दसो डायग्राम देख के। एक लैफ्ट गैप वाली, लैफ्ट गैप वाली किस दा, लैफ्ट गैप वाली किस दा रोल प्ले करदी हुंदी है, आर दा। राइट गैप दे विच की लग्या होया बेटा, 6 ओम। राइट गैप वाली रेजिस्टेंस किस दा रोल प्ले करदी हुंदी है, बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, तो पुत्ते 40 ओम। किस दा रोल प्ले होएगा, पी दा। 100 माइनस एल कितना दिता है, 60, 60 ओम किस दा रोल प्ले होएगा पुत्त, क्यू दा। और लगाओ पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस। पी दी वैल्यू 40, क्यू दी वैल्यू 60, आर दी वैल्यू एक्स 6। कटिंग होके 6 उधर गया, 6 ना 6 कट के एक्स इज इक्वल टू 4 ओम आंसर आ जाएगा। क्लियर। इन्हों ने करंट भी कैलकुलेट करने ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, करंट कितना पास आउट होएगा। करंट ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਤ, करंट किस चो पास आउट, करंट फ्रॉम द बैटरी ऑफ निगलिजिबल रेजिस्टेंस, कितना करंट पास आउट होएगा। दसो किमें कैलकुलेट करोगे, कितना करंट पास आउट होएगा। ओम्स लॉ तो लगाओगे, बट नेट रेजिस्टेंस किमें फाइंड आउट करोगे पुत्त। वोल्टेज तो दी हुई है, ठीक है, वोल्टेज थोनू डायग्राम च दी हुई है 6 वोल्ट। नेट रेजिस्टेंस कढ़नी पेगी। नेट रेजिस्टेंस किमें कढ़ोगे, बोलो। डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, डायग्राम के अकॉर्डिंग इत्थे हो गया आर, जिन्हों तुसी एक्स कहा, पूरे हो गया एस, जिन्हों तुसी 6 ओम लिखा हुआ, एंड नीचे इत्थे 40, इत्थे 60, आ होगी बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी होगी। आ डायग्राम है पता थोड़ी, आ इनू तुसी पी बोलिया सी, इनू तुसी क्यू बोलिया सी, आ आर आ एस, आ एक्स असी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 4 ओम आई है। आ पुत्ता दोने किस च ने, एक रस्ते च हैगियां ने कि नहीं, हैगियां बेटा एक रस्ते च, बोलो। किन्ने आ जाएगा, आ उपरले पाथ की रेजिस्टेंस, फर्स्ट पाथ की रेजिस्टेंस किन्नी आ जाएगी, 10 ओम। अच्छा आ दोने भी किस च ने पुत्त, हैगे देखो एक पाथ, सैकेंड पाथ की रेजिस्टेंस किन्नी आ जाएगी, 40 प्लस 60। हाँ पुत्त आ दोने आपस किस च हो गया, R1 R2 आर इन पैरलल। पैरलर च फिर तुसी नेट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो।
10 into 100 upon 10 plus 100, 10 into 100 upon 110, 100 by 11, ਨੈਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਈ। ਕਰੰਟ ਕੱਢ ਲਓ V ਬਾਈ ਆਰ, V ਹੈਗਾ 6, R ਆਇਆ 100 ਬਾਈ 11, 11 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, 6 into 11 by 100, 66 by 100, 0.66 एम्पियर। समझ आ गया क्वेश्चन? बोल, ਕੋਈ ਟਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲੈਫਟ ਗੈਪ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਗੈਪ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, क्वेश्चन नंबर 23 ਤੇ ਆਨੇ ਪੁੱਤ। क्वेश्चन नंबर 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਈ P, ਇਹ ਹੋ ਗਈ Q, X ਐਂਡ Y ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆ ਲੈਫਟ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਲੈਫਟ ਗੈਪ, ਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਰਾਈਟ ਗੈਪ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁਣ, ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਸਰਕਿਟ ਅ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ is shown in the balanced state, meter bridge balanced state cha put, meter bridge wire has a resistance 1 ohm per centimeter, okay, calculate a known resistance X and the current drawn from the battery of negligible internal resistance if magnitude of Y is 7 ohm, Y ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤ 7 ohm, ठीक है, करंट भी ਕੱਢਣਾ है, X भी ਕੱਢਣੀ है। पिछले क्वेश्चन वर्गा क्वेश्चन हो गया है। and if at the balancing point B we interchange position of galvanometer and cell, how it will affect the position of galvanometer। ਪਹਿਲਾਂ B ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ? ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨੋ ਇਫੈਕਟ। ਓਕੇ, ਬਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਪੁੱਤ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। क्वेश्चन नंबर 23 इज सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 22, अपने आप करियो। ओके, मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 24 ते, ये हो गया 24 ते आने। 24 दी स्टेटमेंट देखो, इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क P and Q the ratio arms are approximately equal, when R is equal to 500 ohm the bridge is balanced, on interchanging P and Q the value of R for balance is 505 ohm, find the value of S and the ratio of P ratio Q। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, PQRS, ਦੋ ਕੇਸ ਹੈ ਪੁੱਤ ਇਸਦੇ। ਕੇਸ ਫਸਟ, ਕੇਸ ਸੈਕੰਡ। ਕੇਸ ਫਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਨ ਅ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਨੈਟਵਰਕ, ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ P and Q the ratio arms are approximately equal, the ratio arms are approximately equal। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਢੋਗੇ ਬੇਟਾ, ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ P and Q the ratio arms are approximately equal, मतलब P and Q equal ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, and P and Q equal ਨੇ, R ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ 500 ohm, ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, S ਨਹੀਂ ਪਤਾ, S ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ P upon Q R by S ਲਗਾ ਕੇ S ਕੱਢ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ P ਤੇ Q ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, S इज इक्वल टू R आ गया, S इज इक्वल टू R, 500 ओम आ गया।
S इज इक्वल टू 500 ओम। ठीक है। ऑन इंटरचेंजिंग P एंड Q, कहते अगर असी P ते Q ਨੂੰ इंटरचेंज कर ਦਿੰਨੇ ਆ, P एंड Q ਨੂੰ इंटरचेंज, P ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, Q ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, मतलब हुण P1 Q है, Q1 P है। द वैल्यू ऑफ R फॉर बैलेंस इज 505 ओम। बैलेंस वास्ते हुण जिहड़ी R है वो 505 है। बैलेंस वास्ते, ब्रिज बैलेंस करने वास्ते R कितना चाहिए? 505। S फाइंड आउट करना है। S1 तो इत्थे भी S है। क्वेश्चन दी स्टेटमेंट कुछ क्लीयर नहीं हुई, वेट अ मिनट। P बाई Q की रेशो कढ़नी है। P बाई Q इक्वल नहीं दित्तियां होईयां पुत्त आपां नूं, आ पॉइंट अपना गलत है। केस फर्स्ट P बाई Q इक्वल नहीं दित्तियां होईयां, आपां ओहदा मीनिंग क्लीयर करो पहला तो। 24th क्वेश्चन की जो फर्स्ट लाइन है वह मीनिंग क्लीयर करो। इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क P एंड Q the ratio arms are approximately equal when R is equal to 500 ohm and the bridge is balanced। रेशो आर्म्स मतलब आह क्या है बेटा थोनू, आह P बाय Q की रेशो, आ गलत हो गया इत्थों अपना क्वेश्चन, आ नहीं दिता हुआ इक्वल। P बाय Q की रेशो R बाय S की रेशो, रेशो आर्म्स आ वाली हो गई, एक आ वाली होगी आर्म की रेशो, एक आ वाली आ होगी आर्म की रेशो। रेशो आर्म्स इक्वल दित्तियां हुई ने। आर दिता हुआ है 500 ओम, क्लियर। P बाय Q 500 बाय S आ जाएगा, 500 बाय S। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा पहला दसो आ पॉइंट क्लीयर होया थोनू कि नहीं होया, कि उलझ गए इत्थों? बोलो, रिपीट करा। हाँ चलो ठीक है, आप स्टार्टिंग तो चलते हैं। P Q दे इक्वल नहीं है, आ भी कुछ नहीं हैगा। अपने कोल चार रजिस्टेंसिस हैं P Q R एंड S। उन्होंने बारे उन्होंने कहा भी जिहड़ियां आर्म्स की रेशो है वो इक्वल है। उपरले आर्म की रेशो P रेशो Q ते नीचे वाले आर्म की रेशो R रेशो S, ये इक्वल दिती हुई पुत्त, आ इक्वल दिता हुआ थोनू। एग्रीड? P इक्वल टू Q नहीं दिता होया, P बाय Q की रेशो R बाय S की रेशो की इक्वल दी हुई है। R कितना दिता है पुत्त? फर्स्ट केस च R कितना? 500। S पता नहीं, S नहीं पता, तो आपने आ इक्वेशन बना ली भी बिकॉज P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाय S। P बाय Q, R की वैल्यू 500, S की वैल्यू S पुट कर ली। सैकेंड केस उन्होंने की किया, कहते P ते Q नू इंटरचेंज कर दो। जी P वाली रजिस्टेंस सी Q की जगह चली गई, Q वाली रजिस्टेंस सी P की जगह आ गई, तो मतलब Q रजिस्टेंस P बन गई एंड P रजिस्टेंस Q बन गई। बैलेंस करने वास्ते रजिस्टेंस कितनी चाहिए पुत्त? R1 कितना दिता है हुण? 505। S1 S ही रखा, ये नहीं चेंज किया, ये सेम रखा। R1 R करता, Q उधर चला गया, P उधर चला गया, मतलब P1 Q बन गया, Q1 P बन गया, R1 505, S1 S। इत्थे लगाओ P1 बाय Q1 इज इक्वल टू R1 बाय S1। P1 अपने कोल Q है, Q1 अपने कोल P है, R1 अपने कोल 505 है, S1 S है। Q बाय P आ गया, इनू P बाय रेसिप्रोकल कर लो, P बाय Q कर लो, S बाय 505, S बाय 505। ये आ गई क्वेश्चन नंबर सैकेंड। इक्वेट कर दो दोनों नू, ये भी P बाय Q है, ये भी P बाय Q है। इक्वेटिंग बोथ साइड्स, 500 बाय S इज इक्वल टू S बाय 505। हाँ वो तो मल्टीप्लाई करो, 500 इंटू 505 S स्केयर रूट कर दो, 500 इंटू 505 का रूट आ जाएगा पुत्त आंसर थोड़ा। देखियो कितना आंदा है रूट करके।
देखो कैलकुलेटर है अगर किसी को कैलकुलेशन चेक करो 500 ਨੂੰ 505 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਐਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤੇ ਐਸ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ P/Q ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ P/Q ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਪੁੱਤ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ P/Q S/505 ਹੈ एस की वैल्यू कितनी है पुत 502.5 नीचे 505 रेशो लेके आंसर डिवाइड कर लोगे आंसर आ जाएगा पुत थोड़ा क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं आया बोलो बेटा क्वेश्चन केस फर्स्ट च सानू आर्म्स की रेशो इक्वल दी हुई है P/Q की रेशो R/S के इक्वल दी हुई है आर दिता असी 500 एस नहीं दिता असी एस ही रख लिया तो P/Q 500/S आ गया सैकेंड केस च उन्होंने क्या कहते P ਨੂੰ Q की जगह ले जाओ Q ਨੂੰ P की जगह लिख लो मतलब P1 नाउ बन जाएगा P1 बन जाएगा Q Q1 बन जाएगा P उल्टाते R1 उन्होंने दिता है 505 S1 S ही रखनी है S1 नहीं चेंज करनी इतों फिर ब्रिज की इक्वेशन लगाई रिजल्ट बनया रेसिप्रोकल करके P/Q की फॉर्म बना ली दोनों इक्वेट करता S आ जाएगा फिर S की वैल्यू चाहे फर्स्ट इक्वेशन च पुट करो चाहे सैकेंड च पुट करो उतों P/Q की रेशो आ जाएगी समझ आ गया बेटा बोलो राजे okay this is question number 24 now we move to question number 25 क्वेश्चन नंबर 25 दी स्टेटमेंट देखो बेटा in a meter bridge when resistance in left gap is 4 ohm and unknown resistance in right gap the balance point is obtained at 40 centimeter from zero end ठीक है on shunting the unknown resistance with 4 ohm shunting मतलब पैरेलल च लगाई unknown resistance दे 4 ohm find the shift of the balance point on the bridge wire shift find करना है ओके केस 2 ने बेटा ये भी क्वेश्चन नंबर 25 यस केस फर्स्ट केस सेकंड पहला फर्स्ट केस कर दें फर्स्ट केस अच्छा दिता है मीटर ब्रिज क्वेश्चन इज ऑफ मीटर ब्रिज मतलब जी टोटल लेंथ है टोटल 100 सेंटीमीटर होगी केस फर्स्ट उन्होंने क्या है लैफ्ट गैप च रेजिस्टेंस है 4 लैफ्ट गैप च 4 ओम मतलब आर होगी 4 ओम राइट गैप दी रेजिस्टेंस राइट गैप दी रेजिस्टेंस पुत अननोन है अननोन एक्स ओम बैलेंसिंग पॉइंट मैनू R1 S1 L1 एवं लिख लेना बैलेंसिंग पॉइंट दिता पुत 40 सेंटीमीटर तो पुत ये हो गया P1 बैलेंसिंग पॉइंट Q1 कितना आएगा पुत दसोगे 100 माइनस 40 60 तो पुत आ हो गया Q आ हो गया P राइट गैप वाला हो गया S एंड लैफ्ट गैप वाला आ गया R आप ब्रिज वाला लगा दो B इक्वेशन लगा दो P1/Q1 R1/S1 P1 हैगा 40 Q1 हैगा 60 R1 हैगा 4 S1 हैगा X इतों X काट दो पुत X उत्तर ले कितना आ गया 4 × 6/4 6 ओम आ गया अननोन रेजिस्टेंस आ गई 6 ओम हुण उन्होंने की किया बेटा सैकेंड पार्ट च उन्होंने की किया कहते जी अननोन रेजिस्टेंस उन्होंने शंट कर दो मतलब लैफ्ट गैप वाली रेजिस्टेंस चेंज नहीं करनी ये तो उन्नी ही रखनी है राइट गैप वाली रेजिस्टेंस शंट करना है एक्स इज शंटड बाय किन्ने नाल शंट करना पुत्तर दसियो शंटड बाय मतलब आप जो एस कढ़ांगे
ਉਹ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਲਰ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪੈਰਲਰ ਸ਼ੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਲਰ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ R1 R2 ਅਪੋਨ R1 ਪਲਸ R2 4 ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਅਪੋਨ 4 ਪਲਸ ਐਕਸ। ਇਹ S1 ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੌਰੀ S2, S1 ਨਹੀਂ S2। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਲੈਂਥ ਕੱਢੋ, L ਫਾइंड आउट करो। अगर P2L है तो Q2 कितना होगा पुत्र? ये तो फाइंड करना पुत्र। P2 अगर L है तो Q2 कितना होएगा? बोल दे क्यों नहीं? P2 by Q2 is equal to R2 by S2। P2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾइंड ਕਰਨੀ ਹੈ, Q2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 100 ਮਾਈਨਸ L, R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੈ ਐਂਡ S2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਆ ਵਾਲੀ 4 इंटू एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स। 4 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा, L अपॉन 100 माइनस L, 4 इंटू 4 प्लस एक्स अपॉन 4x। 4 नाल 4 कट्टा जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पुत्र। LX 100 माइनस L इंटू 4 प्लस एक्स। LX इज इक्वल टू 400 प्लस 100x माइनस माइनस LX माइनस 4L, यही बनेगा ना बेटा। 100 इंटू 4 400, 100 इंटू एक्स 100x माइनस L इंटू एक्स माइनस LX माइनस L इंटू 4 माइनस 4L। ठीक है, x अपना कितना आ चुका है, चलो x पुट कर दो, LX उधर ले जाओ पुत्र, 100 भी उधर ले जाओ, 4L उधर ले जाओ, उधरों LX इधर ले आओ, एम करो। 4L उधर ले जाओ, 400 100x माइनस LX माइनस LX। हाँ पुत्र, 400 प्लस 100 इंटू 6 2LX, ये भी उधर ले जाओ पुत्र, 4LX 4L प्लस 2LX 1000 बन गया है। x की वैल्यू 6 है, 6 इंटू 12 L, x की वैल्यू 6 है, 6 इंटू 2 12L, 16L 100,000 सॉरी, L इज इक्वल टू 1000 बाय 16। ये आ जाएगा पुत्र L कितना आंदा देखियो डिवाइड करके, 1000 डिवाइडेड बाय 16 60। बुक नाल आंसर मैच नहीं होया। फाइंड शिफ्ट फाइंड करना सच, ये L आ गया L, दिस इज न्यू लेंथ, ये न्यू लेंथ आई है पुत्र। ओरिजिनल लेंथ कितनी सी? न्यू लेंथ आई है पुत्र 62.5 सेंटीमीटर। ओरिजिनल लेंथ कितनी है जी पहले केस च सी? ओरिजिनल 40, ओरिजिनल लेंथ सी 40 सेंटीमीटर, आ सी पुत्र 40 सेंटीमीटर है ओरिजिनल लेंथ। न्यू लेंथ आई है 62.5 सेंटीमीटर, तो शिफ्ट कितना आया? न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, 62.5 माइनस 40, 22.5 सेंटीमीटर का शिफ्ट आएगा। क्वेश्चन समझ आ गया? ये वैसे आप इन्नी वड्डी कैलकुलेशन लैके गए हैं, इन्नी कैलकुलेशन लैके जाने की लोड़ नहीं सी, इत्थे ही एक्स पुट कर देंगे आप, एक्स पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू 6 ओम आई तो हुई है, 6 ओम उरे पुट कर देंगे, उरे पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता, L डैश आ जाता, न्यू लेंथ आ जाती। ठीक है, न्यू लेंथ ओरिजिनल लेंथ 40 है, न्यू लेंथ चो ओरिजिनल लेंथ माइनस करके शिफ्ट नज़र आ जाए भी कितना शिफ्ट होएगा। समझ गए पुत्र? ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखो। यस, 4 resistances 16, 12, 4 and 9 ohm respectively are connected in cyclic order to form a Wheatstone bridge. Calculate the resistance to be connected in parallel with 9 ohm to balance the bridge। बेटा जिमें तुसी क्वेश्चन नंबर 21 किया है, आ देखो
बस 21 क्वेश्चन च वर्ड यूज किया गया सी शंटड, इस च वर्ड यूज किया गया पैरलर। आ सीगा 26 क्वेश्चन। जिमें क्वेश्चन नंबर 21 है उवें क्वेश्चन नंबर 26 है। 9 दे पैरलर च एक्स रख लोगे, ठीक है। कर लोगे बेटा क्वेश्चन नंबर 26, हो जाएगा। एंड ए 27, 27 कर सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स इन द फॉलोइंग सर्किट इफ नो करंट फ्लोज थ्रू द सैक्शन एओ। एओ सैक्शन चो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। ड्रॉ द डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 27, ए बी सी, नीचे बैटरी है बेटा, की है एंड एक रेजिस्टेंस है 2.4 ओम। बैटरी है 6 वोल्ट की। एक रेजिस्टेंस होगी इत्थे 2 ओम, एक रेजिस्टेंस आ वाली है बेटा एक्स ओम, एक रेजिस्टेंस आ वाली है 3 ओम, 10 ओम, 6 ओम। तो पुत उन्होंने क्या एओ वायर चो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। करंट थ्रू एओ वायर इज इक्वल टू 0। की पुत्ता 5 रेजिस्टेंसिस नू मिला के ब्रिज नहीं बन गया। देखियो आ पी है, आ क्यू है पुत, आ आर है, आ एस है, आ सेंटर वाली रेजिस्टेंस होगी। क्योंकि इस चो करंट फ्लो नहीं कर रहा तो पुत्ते वाली हटा दिए, क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੈਲੈਂਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਬ੍ਰਿਜ ਇਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਸੋ P upon Q is equal to R by S। P आ गई 2, Q आ गई X, R हैगा 3, S हैगा 6। क्रॉस कर दो, 2 into 6 by 3 is equal to X। X कितना आ गया पुत्र, नवी डायग्राम ड्रॉ कर लेने हैं हम बिटवीन B एंड C। एक बैटरी है 6 वोल्ट की, एक अपने को 2.4 ओम की आ रजिस्टेंस है, एक का उपरला रस्ता बन गया पुत जिस एक रजिस्टेंस 2 ओम की है, एक रजिस्टेंस 4 ओम की आई है, एक का नीचे वाला रस्ता बन गया, एक रजिस्टेंस 3 ओम की, एक रजिस्टेंस 6 ओम की। 6 हाँ पुत आ दोनों किस च आ गई दसो सीरीज कितना आंसर बनेगा इन्हों का 6 ओम। आ दोनों किस आ दोनों किस च आ गए पुत सीरीज कितना बनेगा 9 ओम। न्यू डायग्राम ड्रॉ कर दें। बैटरी 6 वोल्ट 2.4 ओम, एक उपरले रस्ते च रजिस्टेंस है 6 ओम की, एक नीचे वाले रस्ते च रजिस्टेंस है 9 ओम की। पुता दोनों किस च आ गई वाली दोनों। पैरेलल का फार्मूला लगाओ, 6 into 9 upon 6 plus 9 कितना आंदा पुत्ते आंसर देखियो। देख लो मैनू नहीं पता 1.8 ओम आएगा। नवी डायग्राम ड्रॉ कर दे। न्यू डायग्राम बी एंड सी, बैटरी होगी 2.4 होगी 6 वोल्ट एंड आ दोनों की नैट रजिस्टेंस तुसी कढ़ी 1.8 ओम। हाँ पुत आ दोनों किस च आ गया हुण, आ दोनों बैटरी के पॉजिटिव तो स्टार्ट करो नैगेटिव तक जाओ। देखो एक पाथ च आ गया पुत, सीरीज च आ गया। नैट रजिस्टेंस कितनी आई फिर 1.8 प्लस 2.4 4.2 बोलो करंट कटना है। हाँ बेटा आ वाली कह रहे हो
इट इज 3.6 3.6 प्लस 2.4 कितना बनया 6 I इज इक्वल टू V बाई आर वोल्टेज आएगा 6 R आएगा 6 1 एम्पियर करंट आ जाएगा समझ गए बेटा किमें कितना क्वेश्चन समझ आ गया बेटा ओके आज आप नहीं करेंगे 27 तक बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन कालू कर दें टाइप कालू फिनिश करेंगे ओके